Good morning friends, welcome back to our channels. In the last lecture we have discussed about the graphs of linear equation and quadratic equations. Today we are going to start the same topic, graph for quadratic equation, but we will talk in detail. How many kinds of parabola? We know that the parabola is a graph of quadratic equations. So we will discuss the types of parabola and the value of EBC, that is the coefficient of x square, x and constant term. We will talk that what does mean the coefficient of x square, what does mean of coefficient of x, and what does mean of constant term. So friends, look at here, the general form for quadratic equation will be ax square plus bx plus c. This is the standard form for quadratic equations. Okay, we should remember that what is this? These are the coefficient of x square. Coefficient of x square, this will be coefficient of x and this will be constant. Right friends, we will talk about these constant terms, coefficient of x square and coefficient of x. Look, we take the example of suppose quadratic equation, that will be 2x square plus 3x plus 4. Is it quadratic equation? Yes, this is quadratic equation because look at the highest power of variable, that is 2, and the equation having degree 2 always known as quadratic equations. So now look at this equation and this is equations. Compare these two. What we will get? We will get the value of a will be 2. Look at it. What is a? A is a coefficient of x square. So what is the value of a in this equation? That will be 2 because the coefficient of x square is 2. Now look at here, b equal to 3 because the value of b is coefficient of x. So look at here, coefficient of x is 3, so the value of b equal to 3. And look at here, this is c, that is constant. Okay friends, look at here, a equal to 2, b equal to 3 and c equal to 4. Now from quadratic equations, the values of coefficient, how the graph of quadratic equation, we know that is parabola, but in which kind of and how it depends on the coefficient of x square, coefficient of x and coefficient of this is the constant term. Either we say coefficient of x raised to 0. If we say coefficient of x 0, that will be good. Otherwise we say that is constant term. Okay, friends, now we have discussed that how many kinds of parabola are there and how many possibilities of parabola are there. Let me talk about it. We know that friends, suppose we draw by this way. This is the x-axis and this is the y-axis. This will be x dash and this will be y dash. How many kinds of parabola are there and how many possibilities of parabola? Let me talk. One of parabola will be like this. This is also one kind of parabola. This is also one kind of parabola. Parabola will be like this, and parabola will be like this. There are the 4 possibilities of parabola. Look at here. Open upward. Look at here. This parabola opening upward side. This parabola opening downward sides. This is towards x positive axis and this is towards x negative axis. Friends, we do not talk about this because these are involved in higher classes. We will talk only these two graphs. This is about y equal to x square. This is equal to y equal to x square and this will be y equal to minus x square. Friends, this is the graph of about y equal to x square. We know that x square is a quadratic equation. So this is the graph for y equal to x square and this is the graph for y equal to minus x square. Friends, what's about these two? This equal to x equal to y square and this will be x equal to minus y square. Right friends, but remember this, in our syllabus all the quadratic equations are in the form of x. So we will talk only about these two parabola, not only these two, because these are the parabola about when an equation is in the form of y square. This is the quadratic equation, but is in the y variable, this is also in y variable. So we want to talk about these two graphs, we will only talk about these two graphs.
Okay, so friends, we talk about these two graph in detail. Let me talk about these two. We cancel these two. Okay, but remember these are the types of parabola. Now we talk about these two. Look at friends, this is the parabola opening upward side and this is the parabola opening downward sides. Friends, when we can say that the parabola of given quadratic equation will be open upward, remember this. We know that in quadratic equations a, b and c are the coefficient. Remember, the coefficient of x square, it means a, is greater than 0. If greater than 0 means a must be positive. अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इट मींस 0 से बड़ा है, तो उस इक्वेशन का पैराबोला जो है वो ओपन अपवर्ड मिलेगा. क्लियर? सेकंड, जब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जो a है, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, तो उस इक्वेशन का जो पैराबोला है वो ओपन डाउनवर्ड मिलेगा. मतलब इस केस में आपका a क्या होगा? a लेस देन 0 होगा. क्या होगा? a less than 0 होगा. तो दो बातें फ्रेंड्स क्लियर हो गई. that if a greater than 0 then parabola will be open upward and if a less than 0 then parabola will be open downward. So friends, we have talked about a. Now we still need to talk about b and c. Suppose ax square plus bx plus c. ये क्लियर हो गया कि इक्वेशन में a जो है वो आपको क्या बताता है. तो दो बातें बताता है. अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ खुलेगा. अब हम बात करेंगे b और c आपको क्या समझाते हैं. व्हाट द वैल्यूज ऑफ b एंड c गिव्स अस या एक्सप्लेन अस. ओके, सपोज आई ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ विल बी लाइक दिस and another graph I draw here, this will be like this. Okay friends, now this is y equal to ax square plus bx plus c. Okay, what is the coordinate of this point? This will be 0 by 0 minus y, sorry, because this is the x, this is x dash, this is y, this is y dash. Friends, this is the negative sides of y, so the coordinates of this point will be 0 minus y and the coordinate of this point must be 0 plus y. Is it clear? Okay. Okay friends, now look at this coordinate. This is 0 minus y and our equation is this: ax square plus bx plus c. This is y equal. Friends, x 0 है. अगर x की जगह पे मैं 0 रख देता हूँ तो देखो x यहाँ पे 0 रख दूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे x रखूंगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा. सिर्फ बचेगा मेरे पास y इक्वल टू c. क्या बचेगा? y इक्वल टू c. सिमिलरली माइनस y रखा था तो ये मिलेगा माइनस c और यहाँ पे प्लस 0 रखूंगा तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा? सेम y. यहाँ पे भी मुझे y इक्वल टू c ही मिलेगा, राइट. लेकिन यहाँ पे माइनस बाय एक्सिस पे इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस सी एंड ये क्या हो जाएगा? प्लस सी. प्लस लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, तो ये पॉइंट था 0 माइनस y, मतलब x कोऑर्डिनेट 0. अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y क्या बन जाता है? माइनस सी बनता है. अगर यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट 0 है तो अगर x कोऑर्डिनेट में यहाँ पे 0 कर देता हूं तो सिमिलरली मुझे क्या मिलता है? y इक्वल टू c, राइट. इट मींस ये पॉइंट कौन सा है? 0 c, मतलब 0 y था, y इक्वल टू c है तो ये क्या बन गया? 0 c और ये क्या बनेगा? 0 माइनस c. ओके, अब देखिए आप इक्वेशन में देखिए ये c मैं बता रहा, b की हम बाद में बात करेंगे. एक ही बात हम कर चुके हैं. ये हमें क्या देता है? ऊपर खुलता है पैराबोला या नीचे खुलता है? ये दो बातें हमें ये बताता है. अब हम b की बाद में बात करेंगे, c की पहले कर लेते हैं. देखिए आप, अगर c नेगेटिव है तो आपका पैराबोला नेगेटिव y को इंटरसेक्ट करेगा. ये बात तो मुझे समझ में आ गई, आपको आई है? अगर आपका c नेगेटिव है तो पैराबोला नेगेटिव y एक्सिस को कट करेगा. यहां पे देखिए, अगर c आपका पॉजिटिव है तो पैराबोला, सॉरी ओपन वाला बड़ी लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा a ग्रेटर देन 0 है. प्लीज पार्डन, दिस विल बी लाइक दिस. This will be like this. Okay, ये पॉइंट कौन सा?
ये था 0y और सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं उसको 0c बिकॉज़ y इक्वल टू c। ओके, ये x था, ये x डेश, ये y एंड दिस इज y डेश। अब देखिए यहां पे c पॉजिटिव है, c क्या है पॉजिटिव, तो आप पैराबोला देख सकते हैं, पैराबोला जो है वो पॉजिटिव y अक्ष को कट कर रहा है। c नेगेटिव था तो नेगेटिव y को कट किया, c पॉजिटिव है तो कहां कट कर दिया पॉजिटिव y। इट मींस याद रखिए इक्वेशन का जो आपका कांस्टेंट टर्म है, इक्वेशन का आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव होगा तो पैराबोला y एक्सिस को प्लस y को कट करेगा। अगर आपका c नेगेटिव है तो पैराबोला c पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y को कट करेगा, अगर c नेगेटिव है तो नेगेटिव y को कट करेगा। इज इट क्लियर? सो दो बातें हमें क्लियर कर देनी यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट। एक a ग्रेटर देन 0 है, या उस केस में भी a ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, सो देयर विल बी a ग्रेटर देन 0। यहां पे भी पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, सो यहां पे भी a ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन पैराबोला थोड़ा डिफरेंस है, ये पैराबोला थोड़ा x एक्सिस की नीचे की तरफ जा रहा है, ये पैराबोला x एक्सिस की ऊपर की तरफ है। तो याद रखिए जब भी आपका c नेगेटिव होगा तो पैराबोला विल बी कंप्लीटली डाउन टू x एक्सिस, will be completely down to x axis. It means that will cause the negative y axis if c is negative. If c is positive, then parabola will be completely on x axis. It means above the x axis and will cut positive y axis in a single point like this. Okay friends, I hope that will be clear. Okay friends, we have talked about the quadratic equation. If the coefficient of x square, if it is greater than 0, then parabola will be open upward. If it is less than 0, it means a less than 0, the parabola will be open downward. Okay? ए की बात कर ली हमने, c की भी बात कर ली कि अगर आपका c पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा हो सकता है, c अगर पॉजिटिव है, मैं ये दो कंडीशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, a greater than 0 and c less than 0। ये दो बातों का ग्राफ कैसा हो सकता है, a greater than 0 इट मींस वो ओपन अपवर्ड ही होने वाला है, और a less than 0 है इट मींस जो पैराबोला है वो नेगेटिव y को कट करेगा। मतलब आपका जो पैराबोला है वो इस तरह से बनने वाला है, क्योंकि c नेगेटिव था इसलिए उसने नेगेटिव y को कट कर दिया। दूसरा ग्राफ बना दिया है, if a greater than 0 and c also greater than 0, तो ये दो केसेस का ग्राफ कैसे हो सकता है। Right now we are not talking about the b, the coefficient of x, just we talk about the coefficient of x square and coefficient of only c. So look at the parabola for these two conditions and the parabola will be like this. A greater than 0 it means open upward and c greater than 0 it means parabola will cut positive y axis. Okay friends, now we talk about the b. What the value and the sign of b explain us. b हमें क्या समझाएगा, a और c की हमने बात कर ली है। ओके, मैं यहां पे एक पैराबोला बना लेता हूं कुछ इस तरह से। ओके, मुझे बताइए फ्रेंड्स ये पैराबोला का a क्या हो सकता है, 100% a greater than 0। Obviously a greater than 0 because parabola will be open upward, ऊपर की तरफ खुल रहा है इसलिए a greater than 0 ही बनने वाला है। अब हम बात करें, नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट c, वी विल टॉक ओनली अबाउट b। ये वाली b की बात करेंगे कि b की साइन हमें क्या समझाएगी। फ्रेंड्स ये पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर पैराबोला स्टार्ट मूविंग, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम द पैराबोला स्टार्ट इंक्रीजिंग। यहां से आप देख सकते हैं पैराबोला कांस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है और उसी पॉइंट से पैराबोला इंक्रीज हो रहा है। तो यही जो पॉइंट है वहां से पैराबोला का जो मूवमेंट है या उसका जो नेचर है वो यहां से चेंज हो रहा है, इसलिए इस वर्टेक्स को कहेंगे, मतलब इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कह सकते हैं हम। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और ये वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है फ्रेंड्स फिक्स है, वो है -b/2 है जो इसका x कोऑर्डिनेट है, और -d/4a जो इसका y कोऑर्डिनेट है। This is the point, it is known as vertex of parabola, and from where parabola start increasing. If it is decreasing, then it will start increasing.
Okay, so this point called vertex of parabola, and the coordinates of this point will be minus b by 2a and minus d by 4a. Friends, you know right? What is b and what is a? A is a coefficient of x square. What is b? Coefficient of x. Now here still question that what is capital D? Friends, we have discussed in standard 9. If I am right, d is called discriminant, and the value of d will be b square minus 4ac. This is the discriminant, and this d shows this value. Okay, friends. So leave it. In this case, from these two vertices, this coordinate is very important. This coordinate will decide that how parabola will be moving. So ये कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. अब ये तो दो कोऑर्डिनेट फिक्स है, वैल्यू फिक्स है. उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ तो समझ में आ जाए. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस. मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, और ग्राफ से हम डिसाइड करेंगे कि बी की वैल्यू क्या हो सकती है. ये तो देख सकते ग्रेटर देन 0 है, राइट. सी की अभी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ बी की बात करेंगे. तो ये ग्राफ के लिए b क्या हो सकता है, ये वैल्यू फिक्स है, आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, राइट. तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होनी चाहिए. तो लुक हियर फ्रेंड्स, आप पैराबोला को जरा ध्यान से देखिए. पैराबोला कौन सी साइड पे जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. ये पॉइंट कहां पे है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, क्योंकि हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, नॉट y. तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये पॉइंट पॉजिटिव x की तरफ है. मतलब ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए. ये पूरा x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपका जो वर्टेक्स है पैराबोला का वो पॉजिटिव x एक्सिस की साइड पे है, इसलिए पूरा x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए. देखिए यहाँ पे a तो मैंने ग्रेटर देन 0 बताया क्योंकि ऊपर अपवर्ड है. तो वन थिंग इज क्लियर कि a तो पॉजिटिव है, b आपको नेगेटिव दिया है क्योंकि वो तो है ही. मुझे तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव लानी है. फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए b नेगेटिव है, नीचे प्लस है, ये वैल्यू पूरी क्या बनेगी? प्लस बनेगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है. नीचे प्लस है, ये माइनस दिया है तो ये माइनस है, इनटू अब b की वैल्यू में क्या लिखूं जिसकी वजह से पूरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बन जाए. इज इट क्लियर? b की वैल्यू माइनस होनी चाहिए. b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस होनी चाहिए. जब माइनस होगा तो देख सकते हैं ये तो ये साइन तो दी हुई है, यस. नीचे पॉजिटिव a, ये तो पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है, राइट. अब मुझे b की वैल्यू डालनी है. b की वैल्यू इस तरह से डालनी है कि पूरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाए. ओके, तो मैंने ये डाल दी b की वैल्यू. देखिए b अगर मैं माइनस डाल देता हूं तो माइनस माइनस विल गिव प्लस, जब भी नीचे भी प्लस होगा तो एंटायर वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. तो फ्रेंड्स ये केस में ये पैराबोला के लिए b मेरा क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? जब अगर मैं b लेस देन 0 ले लूंगा तो यहां पे b जब रखूंगा तब b क्या हो जाएगा? b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. अब b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा मेरा पैराबोला कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, राइट. एक और एग्जांपल से समझते हैं. देखिए मैं कुछ इस तरह से ग्राफ बना लेता हूं. ओके, थोड़ा सा पैराबोला नीचे गया है, कोई बात नहीं, मैं सी की वैल्यू वहां से डिटरमाइन कर दूंगा. देखिए पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, इट मींस a ग्रेटर देन 0. ये बात पक्की हो गई कि a ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है. सी की वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो सकती है? फटाफट बता दीजिए मुझे. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कट कर रहा है y एक्सिस को. कौन सी डायरेक्शन है ये प्लस y है तो ये नेगेटिव y है. तो पैराबोला नेगेटिव y को कट कर रहा है, इसलिए मेरा c क्या होगा? लेस देन 0 होगा. जस्ट नाउ वी टॉक अबाउट b. अब हम b की बात करेंगे. फ्रेंड्स हमें पता है दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर पैराबोला स्टार्ट इंक्रीजिंग, बिकॉज़ यहां से डिक्रीज हो रहा था, उसी पॉइंट से उसने इंक्रीज करना चालू कर दिया. और वी नो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट विल बी -b/2a and -d/4a. These are the vertex of this point. मैंने कहा था कि x कोऑर्डिनेट ही इंपॉर्टेंट है पैराबोला के लिए, ठीक है. चलिए
तो ये पैराबोला के लिए मेरा b की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि a और c मैंने आपको दे दिया है, b की वैल्यू क्या होगी? देखिए a मेरा पॉजिटिव है, जो वैल्यू दी है वो माइनस है, इनटू नीचे प्लस, यहां पे यहां से मैंने वैल्यू लिखी है, ये माइनस था तो माइनस, इनटू ये जगह मैंने खाली छोड़ी है b की वैल्यू लिखने के लिए, नीचे देख सकते हैं पॉजिटिव है क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। ओके, अब ये पूरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहले आपको ग्राफ से पता लगाना है, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए पैराबोला कौन सी साइड पे है, नेगेटिव एक्सिस की, सॉरी नेगेटिव एक्स की तरफ है। देखिए वर्टेक्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स। अगर नेगेटिव एक्स है तो ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, पूरी वैल्यू नेगेटिव बन जाए, उसी तरह से b को सेटल करना है। ठीक है, पूरी वैल्यू नेगेटिव बनानी है तो b को क्या लिखोगे, b की साइन क्या लिखोगे कि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव बने। देखिए अगर मैं यहां माइनस लिखूं तो पूरी वैल्यू प्लस हो जाएगी, मैं यहां पे प्लस लिखूं तो ये बात बन सकती है। देखिए ये प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, राइट, क्योंकि मुझे नेगेटिव नहीं लाना। तो इससे पता क्या चलेगा कि ये वैल्यू कौन सी लानी है, पॉजिटिव लानी है कि नेगेटिव लानी है। आगे वाले केस में हमने देखा था कि कोई ग्राफ इस तरह से जा रहा था, सॉरी ग्राफ को इस तरह से जा रहा है ना, तो ये वर्टेक्स देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, इसलिए उसके कोऑर्डिनेट को हम पॉजिटिव लाए, और पॉजिटिव लाने के लिए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, नेगेटिव थी। यहां पे देखिए, यहां पे वर्टेक्स देखिए नेगेटिव एक्स की तरफ है, नेगेटिव एक्स तरफ है, इसलिए पूरा कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव बननी चाहिए। नेगेटिव बनने के लिए मेरी b की वैल्यू मुझे क्या डालनी पड़ेगी, प्लस। जब मैं प्लस डाल दूंगा b की वैल्यू तो प्लस प्लस कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव बचेगा, इसलिए पूरी वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव। तो फ्रेंड्स ये पैराबोला के लिए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होगी, तो नेगेटिव होगी, b लेस देन 0 होगा। b की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, और b की वैल्यू लेस देन 0 लाने के लिए इक्वेशन में b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, बिकॉज़ जब आप पॉजिटिव यहां पे लिखोगे तब एंटायर वैल्यू नेगेटिव बनेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन वी कैन say if b is positive then we will have such kind of parabola। तो फ्रेंड्स तीनों कोऑर्डिनेट की हमने बात कर ली है कि if a greater than 0 then parabola will be open upward, if c greater than 0 then parabola will cut positive y axis, and if b की जो साइन है हमें क्या देख सकते हैं, क्या एक्सप्लेन करेगा, तो हमने दो केसेस से उसको पढ़ा। एक ये केस में आप देख सकते हैं अगर पैराबोला उसी तरह से है तो b की वैल्यू यहां पे आपको क्या मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी, और इस केस में आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी। तो फ्रेंड्स दीस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द पैराबोला। Lot of things we have because we have four possibilities of parabola. Just in the beginning we have talked about it. But these are the parabola only about y equal to x square, not x equal to y square. ये parabola हमें नहीं पढ़ना है, हमें तो यही पढ़ना है क्योंकि हमारा सिलेबस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिर्फ x के फॉर्म में दिए हुए हैं, इसलिए हम ये दोनों टाइप्स ही पढ़ने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। कुछ जो y x equal to y square वाले मैंने पैराबोला आपको बताया था कुछ इस तरह से होंगे, और एक पैराबोला बताया जो इस तरह से थे, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। You will think only about these two parabola y equal to x square and the shape will be like this.